ادھر آؤ تو میں بتاتا ہوں. اتنے تمہیں شوق ہے. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے گلی ملے کا دانشور سمجھا ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ ادھر آؤ یار، کیا ہوا ہے یار کب بات ہے کرنے والی. کیا ہو گیا؟ فیول آدمی. کس کو کہتے جا رہے ہو؟ یہ ادھر جو برف خانے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں تاش کھیلنے کے لیے، ہاں مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ آج ادھر بیٹھ کے تو سیاست پہ تبصرہ کرو. میں نے کہا کہ حیا کرو، دانشور آدمی ہوں میں. ادھر پھٹے کے اوپر بیٹھ کے تم لوگ تاش کھیل رہے ہو، ادھر میں سیاست پہ تبصرہ شروع کر دوں. تو کر دیتے ہیں، تمہارا کوئی پیسے لگتے ہیں یار؟ لگتے تو نہیں ہے، چلو دیں تو ٹھیک نا. کہہ رہے ہیں 50 روپے لے لینا. اس پہ مجھے زیادہ غصہ چڑھا کہ یار میں 50 روپے کا دانشور. بالکل جو ظلم ہے یار. میں نے کہا کم از کم 100 روپیہ تو دو. اچھا آدھا گھنٹہ بحث کرتے رہے، میرا چییا لے رہے ہیں، کبھی یہ کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں. ایک شوخا سا کہتا ہے اس میں کے منہ میں روڑا رکھ کے کھینچ کے مارو تو دلیل ہے یہ. 100 روپیہ میں نے کہا دے دو. آدھا گھنٹہ بک بک کر کے میں 75 پہ آ گیا ہوں، وہ 50 سے 51 نہیں ہوئے. عزیزہ پہلے سلام تو لے لیں. سوری. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور انتہائی غصے میں عزیزی. السلام علیکم ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم. نہیں کو بات ہوتی ہے کرنے والی. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر بندہ جو یہ ہے پھر بات ختم کہاں پہ ہوئی؟ 50 روپے سے آگے نہیں بڑھے؟ نہیں یار چلو 51 بھی نہیں کیا، میری تسلی کے لیے ہی کر. اچھا وہ اگر 1 درجن کنوں آفر کرتے پھر؟ نہیں یار میں دانشور ہوں یا آڑتی ہوں. اچھا غصہ جانے دیں جی صاحب، گپ شپ شروع کریں. یہ ناظرین سب سے پہلے تو میں چودھری شجاعت صاحب کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں تحریک انصاف کا الیکشن جیت لیا. دیکھو یہ فضول بات کر رہے ہیں. اگر ایک شہر سے تحریک انصاف کے اس طرح کے رزلٹس آ گئے، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو باقی جگہوں سے ان کے لیے بہت قابل فخر رزلٹ آئے ان کا تم کوئی ذکر نہیں کر رہے. سارے طرف سے میں تو اس بات پہ بھی فخر کر رہا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کرایا ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں، لڑائی مار کٹائی کے اکا دکا واقعات جو ہیں، ان کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کی اس نئی جو ایک طرز سیاست ہے، اس کو ملعون کرنا میرا خیال ہے کسی طور پہ درست نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم تھا جس کی ہر صورت میں یہ بجائے کہ ہم اس میں سے چھوٹی چھوٹی خرابیاں نکالیں، اس لڑائی مار کٹائی کے واقعات یا 2-4 جو اس طرح کے لوگ سامنے آ گئے ہیں ان کو ہم کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، بڑے دل کے ساتھ ہمیں تعریف کرنی چاہیے. اور یہ قابل تقلید مثال ہے. اور باقی جماعتوں کو بھی بجائے یہ کہ اس طرح کی الٹے سیدھے بیانات دیں، میرا خیال ہے کہ اس کی تقلید کرنی چاہیے. نہیں یار میں کو ملعون نہیں کر رہا ہوں ان کی سیاست کو، میں داد دے رہا ہوں. بلکہ میں تو سارے رستے یہ سوچتا آیا ہوں کہ یہاں لاہور سے عبدالعلیم خان صاحب اور رشید پٹی صاحب جو جیتے ہیں، تبدیلی آئے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ پاکستان لیول پہ چلی جائے اور عبدالعلیم خان صاحب یا رشید پٹی صاحب عمران خان صاحب کی جگہ پہ تحریک انصاف کے صدر بن جائیں. ہاں عمران خان صاحب کو لکھات کے تو نہیں آئے ہوئے، وہ تو خود کہتے ہیں تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، جس کو مرضی صدر بنائیں، یہی کلچر باقی سیاسی جماعتوں. یا تم ایک بات بتاؤ کہ یہ معمولی بات ہے کہ یہ علیم خان صدر بن گیا؟ کیا فضول بولتے جا رہے ہو؟ کیا یہ معمولی بات ہے کہ عمران خان کے یار میری بات سنو کہ یہ معمولی بات ہے کہ عمران خان کے فرسٹ کزن انعام اللہ خان نیازی میاں والی میں ہار جاتے ہیں؟ تحریک انصاف کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے ان کا گروپ ہار جاتا ہے. یہ معمولی بات ہے. خود کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، ان کا گروپ کھڑا تھا جو ہار گیا. اچھا تو اب وہ انہوں نے اپنا یہ گروپ بنا لیا. یہ کیا بات ہے؟ پارٹی الیکشنز کی یہی تو خوبصورتی ہے، یہی تو اس کا حسن ہے. جمہوریت کا بھی حسن کہنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر اگر کوئی شخص کسی عہدے کے لیے امیدوار ہوتا ہے، کنٹیسٹ کرتا ہے اور وہ الیکشن لوز کر جاتا ہے، لیکن پارٹی کے لیے اس کی فیلنگز اور جذبات پر کوئی حرف نہیں آتا. نہیں بالکل کوئی حرف نہیں آتا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہو اور اس کا ماما کھانا نہ کھا رہا ہو اور لڑکے کا ابا کہے کہ یار کھاؤ کھانا کھاؤ، اور وہ آگے سے ہنس کے کہہ رہا ہو اور اندروں کڑ کڑ کے کہہ رہا ہو کہ نہیں نہیں یہی تو کھا رہا ہے، کھا لیں نہیں آسی وہ کھا لیں یار، کھا لیں نہیں. جو مرضی کہتے جاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کسی کی قیادت پہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اس طرح کھلے عام
अपने पार्टी के इलेक्शंस करवाएं, जो भी मुंतखब होके आ जाए वो आ जाए। नहीं, उसका ये तो हक बनता वाकई है। क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को और उसने इमरान खान करवाया। साहब सही। को। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ और कि इन्होंने एक रीत डाली है, हाँ बिल्कुल, एक नई रिवायत डाली सारे है। कराने शुरू हो गए हैं हाँ, इलेक्शन। इससे पहले ये एजाज गालिबन सिर्फ जमात इस्लामी के पास था या तहरीक इस्तकलाल भी अपने इंतखाबात करवाती थी, लेकिन बहरहाल वो उस अब तो काफ लीग ने भी करवा दिया है। हाँ, कल बिल्कुल। चंगी पड़ी थी काफ लीग यार, उन्होंने एकदम इलेक्शन करा दिया। तहरीक इंसाफ ने वो वाले इलेक्शन करवाए हैं जो काफ लीग ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं। नहीं, ये जो काफ लीग ने इलेक्शन कराए हैं ना, वो तो उससे मुझे याद आ गया, मैं एक दफा एक शादी पे गया, वलीमा रात का था, पिंड था पे। अच्छा। उधर मैं अच्छा भला गया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक मैं खाना खा रहा था, पता नहीं पिंड में मुझे क्या चीज लड़ी है, एकदम मेरे पूरे पिंडे पे तरफ फड़ निकल आए। इसी तरह काफ लीग को राती एकदम इलेक्शन निकल आया, ऐसे पता भी नहीं चला। तुम बोलते जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि इमरान खान को इन पार्टी इलेक्शंस के लिए किस सख्त वक्त से गुजरना पड़ा है। उसकी पार्टी के अंदर इतनी सख्त मज़ाहमत थी, लोग कह रहे थे कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, ये खुदकुशी होंगे ये इलेक्शन। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी है, जो भी हालात सामने आए हैं, जो भी उम्मीदवार जीत के सामने आए हैं, उन पर एतराज किया जा सकता है, तरह तरह की बातें की जा सकती हैं, 100 तरह की ओपिनियन जाहिर की जा सकती है, लेकिन बहरहाल उसने एक चैलेंज कबूल किया है इमरान ने, और एक बात, अपना जो चैलेंज था उसको सच साबित कर दिखा है। मेरा ख्याल को उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद क्रेडिट देता हूँ इमरान खान साहब को। मैं बाकी सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अचानक इलेक्शन करा दिया, उनके इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं जैसे बंदा चंगा पड़ा, रात को तंग फंग भुखा पाना सोता है, सवेरे उठ के बेचारा बॉन्ड की लिस्ट देखता है तो उसका करोड़ रुपए का बॉन्ड निकल आता है, या बॉन्ड निकल आता है रातों रात, या फोड़ा निकल आता है। लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार वैसे वो क्या कहते हैं कि बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। सियासत की बात हो रही है तो कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अंदर बड़े 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 जोड़ पड़ने हैं इस इलेक्शन में, यानी नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब आमने सामने आ रहे हैं लाहौर में। सवाल ही पैदा नहीं होता यार, इम्पॉसिबल। यार इम्पॉसिबल क्यों? अगर दोनों एक दूसरे को बॉलिंग करा सकते हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहरहाल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे एक दूसरे के मुकाबले पे। यार मैं ये पिछले कई बयानात में इनका पढ़ा, एक दूसरे के पार्टियों के लोगों ने कहा जी कि देखा जाएगा लाहौर में आमने सामने आएंगे, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, लाहौर का तख्त छीन लेंगे, वो कह रहे हैं कि लाहौर से धुड़की लगवा देंगे। ये बातें सिर्फ इलेक्शन कैंपेन से पहले पहले ही हुआ करती हैं, इलेक्शंस लड़ते नहीं हैं। कभी भी बड़े लोग जो हैं आपस में बराह रास्त किसी भी हल्के में इकट्ठे नहीं होते। नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा ने एक दूसरे के मुकाबले पे 4 इलेक्शंस लड़े हैं ना, लेकिन ने किसी एक हल्के में एक दूसरे का मुकाबला एक बार भी नहीं किया। मतलब पार्टियां लड़ी हैं आपस में, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, ये अपने सामने नहीं अभी ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। हाँ, ये है कि ये इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें बहुत होती हैं, बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, नारे यार लगते हैं, ऐसी भी बड़के बात मारी नहीं, जाती बड़े हैं। बड़े लोग जो हैं वो लड़े भी हैं एक दूसरे के आमने अब सामने। वो बहुत सेफ हल्का रख के लड़ते हैं। जब 2 बड़ों के दरमियान मुकाबला होता है तो तुम हमेशा देखो कि एक जो बड़ा होता है ना, वो इजाफी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा होता है, 4 या 5 हल्कों से लड़ रहा होता है, तो चौथा या 5वां हल्का होता है जो वो इजाफी हल्के के तौर पे वहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, अपने बुनियादी हल्के पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कभी ऐसा सुना है कि किसी तहरीक के, किसी पार्टी के हेड ने किसी एक ही हल्के से मुकाबला किया हो और वो किसी बड़े का मुकाबला किया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वैसे इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का लाहौर में पहले भी एक दफा मुकाबला था। एक दफा 1997 में हुआ था। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को 50,000 वोटों से शिकस्त दी थी। हाय 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 हाय, उस वक्त तो 50,000 की वैल्यू भी बड़ी थी, 10 मरले का प्लाट आ जाता। मैं वोटों की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा। लेकिन फिर इसी इमरान खान ने 2002 के इंतखाबात में लाहौर से एक ऐसे हल्के में जो आम तौर पर बिल्कुल बरादरी का हल्का समझा जाता है, जहां पर 100% वोट जो है बरादरी की बुनियाद पर दिए जाते हैं, वहां पे इमरान खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को नून लीग के उस उम्मीदवार ने हराया था जो उससे एक इंतखाब पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अच्छा जी, सरदार अय्याज सादिक। लेकिन उससे पहले बहरहाल इन्हीं इमरान खान को नवाज शरीफ ने 50,000 वोटों से हराया था। 50,000 वोटों से? जरा सब्र करो। लेकिन यही नवाज शरीफ साहब 1988 में तुम्हारे मुर्शद
यूसुफ रजा गिलानी साहब से बड़े मार्जिन से हार भी गए थे मुल्तान से। ईमान से जी मैं सदके जाऊं अपने मुर्शिद के यार, तमाल बड़े दिनों से नहीं डाली, मैं भी कहूं मुझे खलियां क्यों पड़ी। वाह जी वाह मेरे लेकिन मुझे जो दो बड़ों का जेन्युइन मुकाबला याद है वो 1970 में ईमान से। हाँ ये किस बात पे भड़क मारी है? इस बात पे कि 1970 तुम्हें चंगी तरह याद है, कितने बुजुर्ग आदमी हो तुम। 1970 में मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद गिरामी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दरमियान मुकाबला था, जो भुट्टो साहब कमोबेश मेरा ख्याल है 12,000 वोटों से हार गए थे। ईमान से। यार इलेक्शन नजदीक आ रहे, यार टेम्पो बना रहा हूं। ओए होए होए होए, देखो एक वो दौर था कि डीआई खान से जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसा बंदा और मुफ्ती महमूद साहब जैसी शख्सियत इलेक्शन लड़ी, और एक फिर वो दौर आया कि डीआई खान से मुसर्रत शहीद ने इलेक्शन लड़ा। तु तरर तु तुरुरु तु तरर तु पम 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 पा पम 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 पा। मैं माफी चाहता हूँ, ये डांस को दिल कर रहा था, इसलिए इस इलेक्शन का जिक्र किया। एक और बड़ा इलेक्शन भी मुझे याद है 1993 में आसिफ अली जरदारी साहब और नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई साहब के दरमियान जोड़ पड़ा था, और उसमें आसिफ जरदारी साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अच्छा जी, एक तो मुकाबला नहीं बता रहे जो हमेशा बड़े बड़े दो आमने सामने आए, गुजरात में अहमद मुख्तार साहब और चौधरी शुजात साहब। हाँ वो तो बिल्ट इन बड़ा मुकाबला है ना, वो तो अगर एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहें भी तो भी जान नहीं छुड़ा पाते, एक ही हल्का है दोनों का। नहीं उधर तो कारकुन भी कहते हैं कि भाई जी ये दो लड़ाएंगे तो हम वोट देंगे। और आखिरी इलेक्शन में वहां पे चौधरी साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चौधरी साहब से मुराद मेरी चौधरी शुजात साहब है, वैसे दोनों ही चौधरी हैं। अच्छा, जिस तरह तुमने गुजरात का जिक्र किया है कि वहां हमेशा हैवीवेट्स का मुकाबला होता है दोनों का, बिल्कुल इसी तरह मुल्तान का भी एक हल्का है जहां पे हमेशा शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी के दरमियान मुकाबला होता था। अब दोनों चूंकि तहरीक इंसाफ में आ गए, इसलिए वहां पे ये रवायती मुकाबला देखने में नहीं आएगा। शायद रवायत बरकरार रखें। क्या मतलब? आपस में लड़ लें। अच्छा, पिशावर से भी मुझे याद है, पिशावर से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने गुलाम अहमद बिलोर के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा था और हार गई थी 1990 में। NA1 पिशावर मुझे याद है। ये बिलोर साहब जिनसे रेलवे हार गई है, इन्होंने बेनजीर को भी हराया। वाह वाह वाह। अच्छा जी, आप एक और इलेक्शन भी बोल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने असगर खान साहब को भी हराया। हाँ बिल्कुल, गालिबन 1990 में ये इलेक्शन हुआ था। आसान नहीं मुझे याद, मुझे कनसन में याद है कि हराया हुआ। और 1990 के इलेक्शंस में ही कराची में फारूक सत्तार साहब ने मौलाना शाह अहमद नूरानी को भी हराया हुआ इलेक्शन। ये फारूक सत्तार साहब MQM वाले, खोए वाले, मलाई वाले। और कौन से हैं फारूक सत्तार साहब? हाय हाय। और इसी तरह लाहौर से शहबाज शरीफ 1990 में जहांगीर बदर को और गालिबन 1997 में हनीफ रामे को भी हरा चुके हैं। देख रहे हो सुन रहे हो, ये उस वक्त की गल जो मैं जहांगीर बदर और हनीफ रामे को हराया सी जो मैं मेट्रो बस भी नहीं सी चलाई। हुण तो मैं मेट्रो बस चला बैठा वा, हुण तो मैं ओबामा नूं भी हरा सकना, ऐसी कोई गल नहीं। मेट्रो बस 1.25 लाख बंदा उदों तो ही सफर करदा, तुसीं थंडे हद होगी तुहाडे लई। पूरे पंजाब का बजट भी लगा दिया उस पे। तो बजट उस लाना और मैं अपने ते ला लेता। नजीना भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इधर के बंदे जो मेट्रो मुफ्त सी ना उदों रोज सफर करते हैं, जो दी टिकट लगी उदों दी गल्लां शुरू कर दी। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात सर पे हैं, इन हालात में एक आम सियासी कारकुन के जोश जज्बे का क्या आलम है, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सियासी वर्कर जनाब नजामत से। और जज्बात क्या होने हैं जुनैद साहब, आप तो जानते हैं हम चंगेजी के दीवाने हैं, चंगेजी के मानने वाले हैं, हम आशिक हैं चंगेजी के। हमारे तो यही जज्बात हैं, गरीबां दी ये आस चंगेजी, हर दिल दी ये प्यास चंगेजी, बदमाशां दा बॉस चंगेजी, ना हड्डी ना मास चंगेजी, कोई नहीं भी ये पास चंगेजी, जीवें चूहा पलास चंगेजी, हरिया होया टास चंगेजी, खजाने दा लास चंगेजी, करेगा सत्यानाश चंगेजी, भावें करे बकवास चंगेजी।
फिर भी सानू रास चंगे जी, 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 फिर भी सानू रास चंगे। साहब, ये आप चंगेजी साहब के हक में नारे लगा रहे हैं या उनकी मुखालफत में? जुनैद भाई, ये नहीं पता हमें क्या मुखालफत है या हक है, ये हमारे दिल की धक धक है। अच्छा। हम तो आशिक है चंगेजी के, काफी अर्दीफ मलाते जाते हैं और चंगेजी के पीछे पीछे जाते जाते हैं। अच्छा। चंगेजी बब्बर शेर है, हम खादम है उसके, जैसा चंगेजी कहेगा हम तो वैसे ही करें। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि आपके चंगेजी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे? देखो गुड़िया रानी, अगर तो इलेक्शन हुआ साफ सुथरा तो चंगेजी की फतह कोई नहीं ढक सकता। अच्छा। और अगर इलेक्शन में धांधली हुई, कपला हुआ, तो फिर चंगेजी साहब हार जाए शायद। या इसे यूं कह लो कि अगर चंगेजी जीता तो इलेक्शन ठीक है, अगर चंगेजी हारा तो हम नहीं मानते इलेक्शन को। असल बात ये है। अच्छा, ये बताएं आपके चंगेजी साहब ने किया क्या है? वो जी क्या नहीं किया सुआए बीए के, बंदा कहीं रह भी जाता है, बीए नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? बीए कौन सा जरूरी है गटर मरम्मत करने में, गलियां पक्की करवाने में बीए की क्या जरूरत है? सही। हजूर वाला हमारे इलाके को पक्का टीट कचूर कर दिया है चंगेजी बाबे ने। हाय, ऐसी ऐसी सड़क बनाई है, ऐसी ऐसी सड़क बनाई है, छोटे से इसका गीता, ऊपर काली टीट कचूर लुक। हाय, मैं मार गया। और कौन सी सड़क बनवाई है चंगेजी साहब ने? हजूर, जो उनकी फैक्ट्री से उनके घर तक जाती है, ऐसी लश पश सड़क, रात के वक्त नंगी पैरी उस पर दौड़ लगाने को दिल करता है। छोड़ो यार, निजामत सड़क वो अपनी फैक्ट्री से घर तक बनवा रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? ये ना कहें जुनैद साहब, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, निजामत से तो इस कदर वो इश्क फरमाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले निजामत के गरीब खाने पे आ गए। हाय, ना बैठने की जगह, ना कोई पक्का फर्श, निजामत के घर ही आ गए चंगेजी बादशाह। किस सिलसिले में आए थे? वो 8-10 महीने पहले मेरे चाचे के पुत्र के ससुर का बड़ा भाई फौत हो गया था। तो अब आए हो? इसी बात पे तो आते ही उन्होंने सॉरी कही है। अच्छा। वो कहने लगे निजामत, और मैंने उस वक्त ही आना था, जगर उस वक्त मुझे जुकाम हुआ था, और मैंने सोचा कहीं मुझसे मैयत को भी ना लग जाए, और मैयत उठ के शुरू हो जाए, कम ऑन लेडी, कम ऑन लेडी, 1 pound fish, कम ऑन लेडी, कम ऑन लेडी, 1 pound fish, कम ऑन लेडी, कम ऑन लेडी। होता है ऐसे बाबा। यार निजामत, और 5 सालों में चंगेजी साहब सिर्फ एक बार तुम्हारी तरफ आए और तुम इस बात पे खुश हो? ये कोई बात ही नहीं है। हाय, गुड़िया रानी, समझाओ अपने एंकर को कि ये किस कदर अहम बात है। हजूर, जिस दिन से चंगेजी साहब हमारे घर से होके गए हैं, मैं तो ठेला बंद करके, घर आके दरवाजा बंद करके अंदर बैठ के सिर्फ यही मजा लेता हूँ। गली से गुजरने वाला हर बंदा ये कह रहा होता है, ओए ओ ये वो घर है जहां चंगेजी आया था। अच्छा। ओ मेरी तो किस्मत पलट गई है उस दिन से जुनैद बाबा। मेरे घर का थड़ा 4-5 फुट बड़ा हुआ था। कई दफा कमेटी वाले मुझे आके तड़ियां तुड़ियां रोब राब डाल के गए हैं। अच्छा। ओए थड़ा ढाए, वरना हम खुद ढा देंगे और जुर्मानन भी करेंगे। अब जब से चंगेजी उस थड़े से गुजर के गया है, वही कमेटी वाले मुझे कह रहे हैं, और निजामत मियां, ओए थड़े पे चिप्स डलवाए, कच्चा अच्छा नहीं लगता। अच्छा। और मैंने कहा इस पे क्या चिप्स डलवाऊं, मेरे पास तो चिप्स खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। कहते हैं ऑर्डर लगा, ओए हम डलवा देते हैं, रगड़ाइयां रगड़ुइयां भी हमारे जिम्मे। निजामत, तुम जरा अपने रवैये पे गौर तो करो। तुम सिर्फ इसलिए चंगेजी साहब के पीछे दीवाने हो रहे हो कि वो तुम्हारे घर आ गए। तुम्हें इस बात से कोई सरोकार, कोई गर्ज नहीं है कि चाहे वो करप्ट है, अपनी हमदर्दियां बदल रहे हैं, जिस तरह के भी, अगर उसके मुकाबले पे कोई फरिश्ता भी आ जाता है तो तुम उसको वोट नहीं दोगे। और फरिश्ते को क्या करना है, जान निकाल लेता है। यार कुछ खुदा का खौफ करो, चंगेजी को छोड़ो।
ये सोचो कि मुल्को कौम के लिए कौन बेहतर है। ओ जी मुल्को कौम भी हम जैसों की है, इसलिए चंगेजी बेहतर है। यार चंगेजी मुल्क के लिए ही है जनाब, और कोई चावलों में डालने के लिए नहीं। चंगेजी हमारा है, हम चंगेजी के हैं, इसलिए तो हम दिन रात कहते हैं हर था पै गया शोर चंगेजी, 1 2 का है 4 चंगेजी, गुजरा वाला लाहौर चंगेजी, आला वधिया मोर चंगेजी, 9 नंबर की डोर चंगेजी, सेम चंगेजी थोर चंगेजी, हो नहीं देता बोर चंगेजी, गिरगिट की है टोर चंगेजी, दुश्मन कहते चोर चंगेजी, असी नहीं कर दे गौर चंगेजी। ये थी हमारी जज्बाती वाबस्तगी की इंतहा। या हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खबर है कि नामुकम्मल रिकॉर्ड और नाकिस कारकर्दगी पर 30 एनजीओज की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। प्लीज फॉरगेट टू गैदर इट। फॉरगेट टुगेदर नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। जो भी है बस भूल जाओ इसे। कौन सी नाकस कारकर्दगी? अभी पिछले महीने तो मैंने होंडा सिटी निकलवाई है, ओह एमडी अयाज हफीज से कह के, और साथ मैंने अपने भतीजे को डायरेक्टरशिप दी है अच्छा। एनजीओ की। यकीन करो जूनी मैट्रिक फेल है वो, उसके बावजूद मैंने उसे डायरेक्टर रखा है एनजीओ का। और मैं क्या कारकर्दगी दिखाऊं, मुझे बताओ। और जितनी मुश्किल से मैंने उसे रखा है ना डायरेक्टर, ये मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। और मैट्रिक फेल को किस खूबी पे डायरेक्टर बना दिया एनजीओ का? तो खूबी उसमें है तो रखा है ना डायरेक्टर। अगला पहिया उठा के तो 1.5 फरलांग मोटरसाइकिल चला लेता है, पहिया नहीं नीचे लगने देता। आपकी एनजीओ करती क्या है बीबी? डॉग्स और कैट्स की जुओं के खिलाफ मैंने एनजीओ बनाई है। सारे शहर में मैंने शैम्पू तकसीम किए हैं। अच्छा। और ये लोग देखे कहते हैं कि आपने कौन से शैम्पू किधर तकसीम किए हैं। हमने तो कई डॉग्स देखे हैं बैठ के कन खुरकते हुए। अच्छा। मैंने फौरी तौर पे नार्वे फैक्स भी किया। मैंने कहा प्लीज अभी पाबंदी ना लगाना, आपको गलत फहमी हुई है। ये जुओं की वजह से नहीं ये पाकिस्तानी कुत्ते खारिज करते, ये पाकिस्तानी कुत्ते हैं बेचारे, वेले बैठे खुरकना थे और की करन, मगर फिर भी पाबंदी लगा रहे हैं। स्टूपिड। अब मुझे पता चला है कि अमेरिकन के पास जुओं की प्रोटेक्शन के लिए भी फंड्स हैं। अब जुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने अपनी कजन को एनजीओ खोल के दी है। अच्छा, तो जुओं के खात्मे के लिए अगर आपकी एनजीओ है तो जुओं के तहफ़्फ़ुज़ वाली एनजीओ भी खुद ही बना लेती हैं आप? वाई उसूल भी कोई चीज होती है। अच्छा। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। या तुम खबर गलत पढ़ रही हो या मेरा ख्याल है राजा साहब के मुंह से गलत निकल गया। अजीज साहब यही लिखा हुआ है। क्लीन स्वीप करेगी नहीं, क्लीन स्वीप कर चुकी है। इलेक्शन से पहले ही कर चुकी? जी हजूर, इलेक्शन से पहले क्लीन स्वीप कर चुकी है ये हुकूमत। तुम्हें नहीं पता, और बिला मुकाबला क्लीन स्वीप किया। कैसे? शुरू में हल्का फुल्का मुकाबला हुआ अवाम के साथ, बसे मुसे साड़ियां अवाम ने, उसके बाद अवाम थक गई और फिर गवर्नमेंट ने क्लीन स्वीप की। कहाँ पे? हाय हाय हाय, वापडा क्लीन स्वीप, रेलवे क्लीन स्वीप, पीआईए क्लीन स्वीप, स्टील मिल क्लीन स्वीप, सुई नार्दर्न गैस लैंड पाइप क्लीन स्वीप, हेल्थ का महकमा क्लीन स्वीप, एजुकेशन क्लीन स्वीप, लॉ एंड ऑर्डर क्लीन स्वीप, खजाना खोल के देखो क्लीन स्वीप। इससे ही ज्यादा और क्या क्लीन स्वीप दें आप लोगों को। अब तो अगली हुकूमत जो आएगी वही आके गंद गुंद डालेगी। इन्होंने तो क्लीन स्वीप कर दिया, ऐसा क्लीन स्वीप किया कि सारी कौम रातों को मोमबत्तियां लालटेनें जला जला के ढूंढ रही है कुछ ना कुछ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। क्लीन स्वीप कर दिया गवर्नमेंट। सफाया। हाँ जी, जैसे सस नी नूह को कहती नहीं कुड़चे एहो जी सफाई करनी हो कि फर्शी चो तेरा मुंह नजर आवे, इसी तरह की हुकूमत ने क्लीन स्वीप सफाई की। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये तो क्रेडिट दो ना फिर कि उन्होंने सैनिटेशन में काम किया है भारत। Yes, sanitation of tomorrow and technological dahi palle. This is not fair, but this is good dal marunda.
एंड गचक। करे कोई भरे कोई, गैस चोरी करने वालों के अरबों रुपए भी सार्फिन से वसूल करने का फैसला। सार्फिन से न वसूल करें तो और अबू धाबी चले जाएंगे। ओ भाई जो चोरी की गैस है वो भी बेचारे सार्फिन दे। नहीं तो अगर सार्फिन से वसूल कर रहे हैं तो चोरी भी तो सार्फिन ही कर रहे हैं ना। भाई जो सार्फिन चोरी कर रहे हैं उन सार्फिन से लेना। यार जो चोरी कर रहे हैं वो तगड़े सार्फिन है, उनका इतना इतना बड़ा डंड होता है। उनको अगर उनसे पैसे वसूल करने जोगे हो तो उनको चोरी क्यों करने दे। सही। अजीब मंतक है। यार सुई गैस के अफसरान जाते हैं जहां गैस चोरी हो रही हो, उधर जाके फिर चोर का मुंह देख के तो एक अद्धा फांटा पी के कोई गोली टिकिटा भी खा के तो चोरी चोरी निकल आती हैं फिर उधर से। चोरी चोरी निकल आते हैं। तुम्हें आती हैं बातें, गैस चोरी नहीं पकड़ी जा सकती। अच्छा। गैस नजर ही नहीं आती तो माल कैसे बरामद करें बेचारे। चोरी का माल बरामद करना पड़ता है चोर पकड़ने के लिए, तो गैस होती है। गुजरांवाला के एक थाने में जाली एसपी के पहुंचने पर तमाम अमला अलर्ट। डांट डपट के दौरान हकीकत खुलने पर खातिर तवाज़ो के बाद उसी थाने में असल खातिर तवाज़ो। ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੰਗੋ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆ ਗਏ ਥਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੋਣਾ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜਾਏ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। मैं रौला पाना शुरू करता, मैं कहो भजो नसो एसपी साहब आ गए की करन डे हो। अच्छा ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ। ਅਗੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਬਣੇ ਆ ਹਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਈਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸੌਣੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਠੋ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ। मैं बड़ा हैरान होया, फिर भी मैं कि यार कोई ऐसी गल नहीं, चंद तारा नजर आ रहा है। मेरा चंद तारे तो नहीं ध्यान हटिया। बैठ गया, मैं कहा बैठो जनाब बैठो बैठो। मैं फिर अल्लाह की नमाज मारी, मैं कहा इधर आ ललते दस के जा बेटे दो चरगे लैके एसपी साहब आए ने। वो एसपी साहब कहते ने चटनी नाल जरूर ले आई। मैनू शक पिया, मैं कहा किहड़ा एसपी है जिहड़ा चटनी दा तरसे है बेचारा। एसपी हुंदा तो कहता भाई दो दी बजाय तीन चरगे ले आई, इहदे नाल चटनी दा कह रही है, कोई मस्कीन आदमी लगदा है। मैं फिर भी चंद तारा ही देखता रहा, मैं कहा नहीं एसपी साहब ही ने, मेरी गलत फहमी है, ऐसी कोई गल नहीं, चटनी का शौक होता है कईयां नूं। लो जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एसपी साहब ने सिगरेट ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਕੇਟੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ ਕੇਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਤੇ ਕੇਟੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਐਸਪੀ ਤੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕੇਟੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਤੋਂ ਕੇਟੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ, ਧੁਖਦਾ ਰਵੇ ਗਿੱਲਾ ਸਿਗਰਟ ਤੇਰਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਹੱਥੀ ਸਿਗਰਟ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ करो। तो कहते लो जी भाईजान मेहरबान कदरदान, एसपी आया दोबारे तेरे कंन च पा के मुद्रा। सारे भाई साहब नूं मेरी गुजारिश है कि 100 रुपया जेब चो कढ़ के हथ फड़ लो, एसपी खुद तुहाडे कोल आएगा 100 लैण वास्ते। लो जी जुनैद साहब मेरी अख अगे नेरा आ गया। मैं एसपी सीधा गिठिया तो फड़े जिवें देख नहीं चुकी थी देख, उस तरह मैं चुक लिया एसपी, लम्मिया पा लिया मैं थले। मैं कहा फड़ लो लित्र, कढ़ लो लित्र, एसपी नहीं जी होए, कोई नेड़े नहीं आंदे। अच्छा जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद भी हो गया सी, अंग्रेज ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਰਾ ਜਾਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਲਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲੋ, ਐਸਪੀ ਜਾਲੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਮਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੋ 100% ਜਾਲੀ ਏ। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। मजेदार तस्वीरों और वीडियोस के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी हाँ जी, मजेदार के लिए मैं तैयार हूँ। मजेदार ही है। ये पहली तस्वीर देखें। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, ये वाला क्या है? क्या है? अंदर बाथरूम में कोई बंदा कम्बोर्ड पे बैठा हुआ है और बाथरूम है छोटा।
اس نے سوچا یار یہ کھول کے بما اس نے پاؤں باہر نکال دیا، یا پھر میرا خیال ہے یہ دیوار نہیں ہے، کوئی پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ نہیں ہے باتھ روم کا، اس لیے اس نے پاؤں باہر نکالے ہوئے ہیں کہ پتہ چلتا رہے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ پردہ نہیں دیوار ہے تو وہ تو بڑی دفعہ سنا ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ دیواروں کے پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب، یہ لیں۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ باندر ہے یا بندر ہے؟ یہ بندر ہے عزیزی صاحب، سمارٹ سے ہے، بندر ہی لگ رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، واہ جی واہ، او ایکسرسائز کر رہا ہے۔ پھر لوگ انٹرویو میں سوال کرتے ہیں جی کہ نعمان یاز سمارٹ کیسے ہے؟ بھائی ورزش کرتے ہیں سارے آرٹسٹ، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ بھی آرٹسٹ ہوتا ہے باندر بھی، ایکسرسائز کر رہے ہیں سمارٹ رہنے کے جو تم نے کہا ہے اپنی بات پہ قائم رہو، اب بات ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ۔ نہیں تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں پائی جی، یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، نعمان اجاز، شاہ رخ خان، شان، معمر رانا اور یہ باندر سمیت، یہ سارے ایکسرسائز کرتے ہیں تو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اس کے باڈی میں، ورنہ تو ہیرو لگتے ہی نہیں پھر بندہ۔ محنت کر، حسد نہ کر۔ یار میں حسد نہیں کر رہا، میں خبروں پہ تبصرہ کر رہا حسد ہی کر رہے ہو تم، اس لیے تو کہا جاتا ہے جلنے والے کا منہ بڑا۔ ہوں۔ یہ دیکھو یار، یہ حسد کرنے سے نہیں بڑا ہوا، پرسوں بارش میں پڑا رہا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا پھول گیا۔ عزیز صاحب اس میں ایکٹر کہاں سے آگئے؟ ویڈیو میں آپ کو بندر کی دکھا رہی ہوں، آپ آرٹسٹوں کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ یہ بندر جو ہے یہ بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگ لگانا ایک آرٹ ہے۔ یہ اس بیچارے نے کہیں ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ لگائی ہے تو پہنچا نہیں، رستے میں ڈگ پڑا ہے، نیچے پر جائی فٹاٹ 1122 پہ فون کر کے اسے لے کے گئی ہے اٹھا کے۔ ڈاکٹر نے پھر کہا کہ ایکسرسائز شروع کرو، تم اس طرح تو پھر چھلانگ تمہاری اور چھوٹی ہوئی۔ پرجائی نے پھر اس کو گھر سے نکال دیا، چلو ایکسرسائز کرو، پہلے اپنی چھلانگ پوری کرو پھر گھر آنا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب اس نے جم جوائن کر لیا۔ یار جم سے یاد آیا، پرویز مشرف صاحب سنے واپس آ رہے ہیں۔ جم سے مشرف صاحب کیسے یاد آ گئے؟ جم ان کا سیکٹری ہے آج کل، اچھا فاسٹ فرینڈ ہے ان کا، اچھا انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ اچھا عزیز صاحب، جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں نا، اسے دیکھ کر اگر آپ کو گھر یاد آئے تو میرا کوئی قصور نہیں۔ اچھا جی، کو مرد حضرات کو کھانا بناتے ہوئے دکھا رہی ہیں؟ کھانا نہیں، کھانا بنانے والی چیز کی تصویر ہے۔ میٹھی یا پھر اس کا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ دانتوں میں ڈوئی دبا کے ایک دوسرے کے سر پہ چپت لگانے کا مقابلہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، واہ جی واہ، دوبارہ میرا خیال ہے فاؤل ہو گیا۔ اچھا یہ تو بیچارہ یہی کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ دیکھو کیا ہوتی ہے۔ ہیلو، اور یہ وہ تیاری کر رہا ہے۔ بہت اچھے، یعنی وہ بیچارہ دانتوں سے مار رہا ہے اور دوسرا صرف ڈوئی اوپر کرتا ہے تو مارتا پچھلا ہاتھ سے ہے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہائے ہائے۔ یہ ہمارے ملک کے لا اینڈ آرڈر والا صاحب ہے نا، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سامنے والا اپنا ہی مار رہا ہے، وہ پیچھے سے آگے کوئی بگانا مار کے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاڑ، بری بات ہے ویسے یار، اتنا دھوکہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہے، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔